اسرائیل سے تباہی اور بربادی کی یہ تصویریں سامنے آنے کے بعد سی این این نے ایک تجزیہ شائع کیا ہے، اور سی این این کا یہ جو تجزیہ ہے، سی این این کی یہ جو رپورٹ ہے، پوری دنیا کو حیران کر دینے والی ہے۔ اور سب سے زیادہ اس میں اسرائیل پر سوال اٹھ رہا ہے۔ ایران کی طرف سے لگاتار جوابی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ایران پر حملے کا آغاز اسرائیل نے کیا تھا، اور اسرائیل نے حملہ کر کے سوچا تھا کہ ایران کی جو طاقت ہے، اس کی جو جنگی قوت ہے، اس کی جو عسکری صلاحیت ہے، وہ ختم ہو گئی ہے۔ ایران کے بارے میں اسرائیل کو یہ لگ رہا تھا کہ اسرائیل نے ایران کے آرمی کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو درہم برہم کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اس لیے ایران جوابی کارروائی نہیں کر پائے گا۔ لیکن یہ اسرائیل کا تجزیہ سیدھے سے غلط ثابت ہوا، اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں تیسرے دن کی ہے۔ ایران کی طرف سے لگاتار اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کی جا رہی ہے، اور تیسرے دن یعنی 16 جون کی رات سے لے کر کے صبح تک ایران نے اسرائیل پر میزائل سے جو حملہ کیا ہے، تو اسرائیل کے مزید کئی شہر تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ پوری کی پوری جو بلڈنگ ہے زمین دوز ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیے کس طرح کا نظارہ ہے، پوری کی جو پوری عمارت ہے زمین دوز ہو چکی ہے، عمارت رہنے کے لائق نہیں بچی ہے۔ یہ عمارت دیکھیے، پوری بلڈنگ کا کیا حال ہے، اس عمارت کا دیکھیے، اس بلڈنگ کا دیکھیے، اس کو دیکھیے، اسے دیکھیے۔ یہ جو تمام عمارتیں ہیں بالکل ملبے میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور ایسی تقریباً ہمارے پاس 30 تصویریں ہیں جو آج اسرائیل سے آئی ہے، اور یہ تصویریں گواہی دے رہی ہے کہ ایران نے میزائل حملے سے کتنی بڑی تباہی مچائی ہے، کس طرح قیامت کا منظر ہے اسرائیل میں۔ آپ ان تصویروں کو دیکھیے تو خیر ہاسپٹل کی تصویر ہے، اس تصویر کو دیکھیے، پوری جو بلڈنگ ہے، پورا یہ لمبا ٹاور ہے اونچا، اور یہ پورا ٹاور زمین دوز ہو رہا ہے۔ اس بلڈنگ کو دیکھیے، اس بلڈنگ کو دیکھیے، اسے دیکھیے، اس عمارت کو دیکھیے، ایسا لگ رہا ہے جیسے خطرناک زلزلہ آیا ہے اور ہر طرف تباہی مچی ہے۔ اس تصویر کو تو آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہی ہوگا، لیکن اب یہ نئی تصویر آئی ہے اسرائیل سے، جہاں دیکھیے یہ مہیلا بستر لے کر سڑکوں پر بھاگ رہی ہے، یعنی سونے کی جگہ بھی اسرائیل میں لوگوں کو نہیں مل رہی ہے۔ اور میں آپ کو اب یہ بتاتا ہوں کہ سی این این نے تجزیہ کیا کیا ہے، اور کیوں دنیا میں سی این این کے اس تجزیہ پر بحث ہو رہی ہے۔ کیونکہ ایران کے حالیہ حملے نے اسرائیل کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور اس حملے کا اسرائیل جو درد ہے برداشت نہیں کر پا رہا ہے، اور اسی وجہ سے سی این این نے یہ اپنا ایک تجزیہ کیا ہے۔ سی این این مشہور میڈیا ہاؤس ہے، اور اس نے لکھا ہے اسرائیل انڈر اسٹیمیٹڈ ایرانس ایبلٹی ٹو ری گروپ آفٹر ملٹری کمانڈرز کلڈ، اینالسٹ سیز۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جب 13 جون کی رات میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اسرائیل اس حملے کی تیاری پچھلے 8 مہینے سے کر رہا تھا۔ امریکہ سے اس نے مدد لیا تھا۔ امریکہ کا جو جنگی جہاز ہے F-35، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے خاموشی کے ساتھ اس کو اسرائیل کے لیے تیار کیا کہ وہ اسرائیل سے جا کر ایران پر حملہ کرے، واپس آ جائے، بیچ میں اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ اس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کی سچائی کیا ہے بعد میں کبھی اس پر بات چیت کریں گے۔ تو پورا پلان سیکرٹ رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے ایران میں جاسوسی کا بہت بڑا نیٹ ورک قائم کر لیا تھا۔ خبریں سامنے آئی ہے کہ پورا کا پورا میزائل بنانے کا کارخانہ اسرائیل نے ایران میں قائم کر لیا تھا۔ ڈرون کو کیسے اسمبل کیا جائے گا، اس کا ورکشاپ ایران میں اسرائیل نے قائم کر لیا تھا۔ جو اسرائیلی میزائل ہے اس کو ایران میں ٹرکوں کے ذریعے سے ادھر سے ادھر منتقل کیا جا رہا تھا۔ یہ پوری تیاری اسرائیل نے ایران میں کر رکھی تھی۔ جاسوسوں کے ذریعے تمام اہم رہنما کی اسے لوکیشن مل گئی تھی، اور اس کے بعد 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر پوری تیاری کے ساتھ حملہ کیا۔ ایک ساتھ 200 سے زیادہ جنگی جہازوں سے ایران کے فضا پر اسرائیل نے اڑنا شروع کر دیا، اور تمام ملٹری ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا، نشانہ بنایا۔ اور اس حملے کے بعد اسرائیل کو یہ لگا تھا کہ ایران جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ پائے گا ایران، کیونکہ اسرائیل نے ایران کے میزائل لانچنگ سائٹس پر حملہ کر دیا تھا۔ ایران کا جو میزائل کا کارخانہ ہے، جہاں ایران کے میزائل رکھے ہوئے تھے، اس کو اسرائیل نے ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایٹمی پاور پلانٹس کو ٹارگٹ کرنے کا، اس کو نشانہ بنانے کا ایران نے دعویٰ کیا تھا۔ تمام آرمی جو ایران کی ہے ان تمام کے چیف کو اسرائیل نے شہید کر دیا، چیف آف اسٹاف کو شہید کر دیا، ایٹمی ہتھیاروں کے جو سائنٹسٹ ہیں ان کو شہید کر دیا۔ اور اس کے بعد اسرائیل کو یہی لگا کہ وہ مضبوط ہو چکا ہے، اور اس نے ایئر فورس کی لڑائی میں، اس نے فضائی لڑائی میں ایران کو 50 سال پیچھے ڈھکیلا۔
धकेल दिया है और ईरान ने भी जब अगले 15 घंटे तक इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की तो ईरान की जो खुद एतमादी है वो और ज़्यादा बूस्ट कर गई। अमेरिका का लबो लहजा भी बदल गया और फिर अमेरिका ने इजराइल के मुकाबले में ईरान को ही धमकी देना शुरू कर दिया। लेकिन जो तज्जिया किया गया वो देखिए, लिखा गया ईरान कंटिन्यूड मिसाइल्स स्ट्राइक्स ऑन इजराइल। इसका जो मैंने उर्दू तर्जमा किया है वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं कि ईरान के मुसलसल मिसाइल हमले ये जाहिर कर रहे हैं कि तेहरान की अफवाज इसराइली हमले में अपने कई आला फौजी कमांडरों की हलाकत के बावजूद दोबारा मुनज़्ज़म होने की सलाहियत रखती है। एक तज्ज़ियाकार ने CNN को बताया, ट्रीटा पारसी जो क्विंसी इंस्टीट्यूट फॉर रिस्पॉन्सिबल स्टेट क्राफ्ट के नायब सदर हैं, उनका कहना है इसराइलियों ने ईरानी सलाहियत को कम समझा कि वो दोबारा मुनज़्ज़म हो सकते हैं। हालांकि इसराइल ने इब्तदाई हमले में ईरानी फौजी क़यादत को कामयाबी से निशाना बनाया और उनमें से कई को हलाक कर दिया। पारसी ने भी कहा कि इसराइल ये समझ रहा था कि उसने ईरानी कमांड एंड कंट्रोल को दरहम बरहम कर दिया है, लेकिन वह निज़ाम तेज़ी से दोबारा बहाल कर लिया गया। उन्होंने कहा कि हम अब जो कुछ देख रहे हैं वो ये कि ईरानी मिसाइल इसराइल के फ़िज़ाई दिफा के तमाम निज़ाम को चीर कर गुजर रहे हैं। यानी ईरानी मिसाइल जब इसराइल पर जाता है तो इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो नाकाम हो जाता है और उसको चीरते हुए उसके दरमियान से ईरान का मिसाइल इसराइल पहुंच रहा है। पारसी ने CNN से उस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे जब पीर की सुबह सवेरे, यानी आज सोमवार है और आज की सुबह सवेरे नई ईरानी मिसाइलों की बारिश हुई जिन्होंने इसराइल के कई मकामात को निशाना बनाया। ईरान और इसराइल के दरमियान हमले वसी होने के साथ साथ दोनों जानिब हलाकतों में इजाफा हो रहा है। तेहरान के रिहायशी दारुल हुकूमत छोड़कर महफूज मकामात की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसराइल में रात भर धमाकों और आग के मनाजिर देखे गए जिनमें रिहायशी इमारतें मुतासिर हुई है। पस मंज़र क्या है कि ईरान के आला तरीन फौजी अफसर, पासदारान इनकलाब के सरबराह, फ़िज़ाइया के सरबराह और कौमी सलामती के सरबराह गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल के गैर मामूली ऑपरेशन राइजिंग लॉइन में हलाक हो गए थे। यानी इतनी बड़ी जो तबाही हुई थी इसराइल के हमले से ईरान में, उसके बावजूद ईरान पीछे नहीं हटा बल्कि ईरान ने अपने आप को मुनज़्ज़म किया और पिछले 3 दिनों से ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, इसराइल को जवाब दे रहा है और हर हमला ईरान का पहले के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होता है। कल रात का जो हमला हुआ है ईरान का इसराइल पर, या और कह लीजिए पूरी रात ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला किया है। रात के 8 बजे मिसाइल लॉन्च करना शुरू किया ईरान ने इसराइल पर और सुबह फजर की अजान तक मिसाइल लॉन्च करने का सिलसिला जारी रहा। कुछ रिपोर्ट हम आपको बता चुके हैं पिछली वीडियोस में, लेकिन जो पूरी मजमूई रिपोर्ट है उसको यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल रात जो ईरान ने इसराइल पर मिसाइल से हमला किया तो उसमें 8 लोगों की हैफा में मौत हो गई है और ज़ख्मियों की तादाद लंबी चौड़ी है। कई इमारतें जो है मुकम्मल तौर पर ज़मीन दोज़ हो गई है। और इसराइल का अखबार है टाइम्स ऑफ इसराइल, इसकी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया 8 किल्ड, hundreds hurt in overnight Iranians मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन सेंट्रल इसराइल हैफा। तो जो सेंट्रल इसराइल है और हैफा है, इन 2 शहरों पर कल रात जो ईरान ने मिसाइलों की बरसात की है तो उसमें 8 से ज़्यादा का कत्ल हो गया है और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। और ये इसराइल के मीडिया की रिपोर्ट है, हालांकि इसराइल ने सेंसरशिप लगा रखा है। उसके अलावा अब तक कितनी बड़ी तबाही हुई है CNN ने पूरी रिपोर्ट शाये की है और CNN की इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 14 जून से अब तक जो जवाबी कार्रवाई की है इसराइल के खिलाफ तो 370 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसमें 150 मिसाइल पहले दिन, 70-80 मिसाइल दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन भी 30 से ज़्यादा मिसाइल का इस्तेमाल किया। तो कुल 270 मिसाइल का ईरान ने अब तक इस्तेमाल किया है। और इसराइल को इसका जो नुकसान हुआ है वो देख लीजिए, 24 पीपल हैव बीन किल इन इजराइल सिंस द के अब तक 24 लोगों की इजराइल में हलाकत हो चुकी है और इसमें कुछ आर्मी के अफराद भी शामिल है। दूसरी तरफ 592 यानी 592 अदर्स ऐसे लोग हैं जो ज़ख्मी हो चुके हैं। 10 की जो हालत है वो सीरियस बताई जा रही है। मलबे के तले भी बेशुमार लोग दबे हुए हैं। जो डैमेज और नुकसान हुआ है अब तक इसराइल का ईरान के हमले में वो देख लीजिए। ईरानियन प्रोजेक्टाइल्स हैव सक्सेसफुली स्ट्रक्स 30 साइट्स अक्रॉस इसराइल के पूरे इसराइल में अब तक 30 ऐसी साइट्स है, 30 ऐसे जगह है जिसको ईरान के मिसाइल ने पूरी तरह तबाह कर दिया है, ज़मीन दोज़ कर दिया है। उसके अलावा ऐसे मकानात और ऐसे इमारतों की तादाद सैकड़ों में है जिसकी मरम्मत करना ज़रूरी है, जो रहने के लायक नहीं है और वहाँ क़यामत जैसी सूरत हाल बनी हुई है। दूसरी तरफ
ईरान पर भी इजराइल का हमला लगातार जारी है। फाइटर प्लेन से इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है और उस हमले में CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जो अब तक तबाही हुई है या मौत हुई है, तो ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो डेटा जारी किया है उसके मुताबिक 224 लोगों की अब तक ईरान में हलाकत हो चुकी है या कह लीजिए शहादत हो चुकी है, जिनमें से 78 लोगों की शहादत पहले दिन हुई थी, बकिया लोगों की बाद में हुई है। और ज़्यादातर ईरान में जो अब शहादतें हो रही है वो आम लोगों की शहादतें हो रही है। अब ज़रा सा इस मैप में देखें कि अब तक यानी ईरान पर इजराइल ने 13 जून को हमला किया था और 14 जून से ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, तो अब तक कितने इलाकों पर कितनी जगहों पर हमले हुए हैं उसको देख लीजिए। तो पहले ये देखिए कि इजराइल ने ईरान के किन शहरों को और कहां कहां निशाना बनाया है। तो कल मशहद को टारगेट किया। मशहद ईरान का मजहबी शहर है, तारीख़ी शहर है। मशहद के एयरपोर्ट पर हमला किया। मशहद में इमाम मूसा रज़ा का मज़ार है, उनका हरम है, उसके नज़दीक भी इजराइल ने कल हमला किया। उसके बाद करमेन एक शहर है, वहाँ हमला किया। करमीन पर हमला किया। खुमैनी जो शहर है वहाँ हमला किया। उसके अलावा जंजान जो शहर है वहाँ हमला हुआ है। तेहरान तो राजधानी है, लगातार यहाँ मल्टीपल स्ट्राइक किया है और नीचे इसकी पूरी डिटेल्स है। उसके अलावा अस्फहान और दूसरे इलाकों पर भी हमला हुआ है। लेकिन ये जो डिटेल्स मैंने बताने की कोशिश की है, ये कल के हमले की यानी पिछले एक दिन में इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया है उसकी डिटेल्स है। इधर 14 जून से अब तक इजराइल के जिन इलाकों को ईरान की मिसाइल ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी चीखें हर तरफ सुनाई दे रही है, तो वो ये है, ये मेडिटेरियन सी है, ये पूरा इजराइल है, इधर गज़ा पट्टी आ जाता है, तो बहरहाल इधर जॉर्डन है। तो इजराइल और ईरान का जो फासला है 1700-1800 किलोमीटर से ज़्यादा का है और हैफा को सबसे ज़्यादा ईरान के मिसाइल ने नुकसान पहुँचाया है। हैफा पोर्ट को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। उसके अलावा हैफा में ईरानी आर्मी की फैक्ट्री है, उसको नुकसान पहुंचा है। ऑयल रिफाइनरी है जहां से पूरे इजराइल में तेल की सप्लाई होती है, उसको नुकसान पहुंचा है। IDF के हेडक्वार्टर को लगातार 2 दिन ईरान की मिसाइलों ने निशाना बनाया और बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। तिल अबीब जो पूरा शहर है ईरान के हमलों की जद में है। उसके बाद रिवोट एक शहर है इजराइल का बहुत मशहूर, इस पूरे शहर में कोहराम बरपा है, तबाही हुई है, वहाँ की तस्वीरें लगातार आ रही है। वाइजमैन इंस्टीट्यूट है जहां से पूरी प्लानिंग होती है, उसको निशाना बनाया गया, तबाही हुई है। और इस इमारत की जिस तरह से तबाही हुई है उस तस्वीर ने कई लोगों के दिल को खुश कर दिया। लोगों ने लिखा कि कुछ ऐसी तस्वीरें इजराइल से सामने आ रही है जिन तस्वीरों को देखकर शदीद गर्मी में भी दिल को ठंडक महसूस हो रही है। उसके अलावा आज रात की एक और ताज़ा खबर यह है कि US एम्बेसी को भी ईरान के मिसाइल हमले से नुकसान पहुंचा है, उसकी वीडियो सामने आई है। इसके अलावा नेतन्याहू का जो घर है उसके घर को भी नुकसान पहुंचा है, उसके घर को भी टारगेट किया गया था। फिर किरियात गाट जो इजराइल का एक तरह से दिफाई पावर है, पेंटागन कहा जाता है, जहां से पूरी तैयारी की जाती है। इसके अलावा एक किरियात गाट है, इसको भी ईरान ने टारगेट किया, इसका भी ज़बरदस्त नुकसान हुआ है और तबाही का जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है। और आइए अब ज़रा आपको ये बता देता हूँ कि कल रात यानी 16 जून की रात में ईरान ने मिसाइल से इजराइल के किन किन लोकेशन को, किन किन ठिकानों को निशाना बनाया और क्या नुकसान हुआ है, और वो पूरा नक्शा ये है। ये हैफा पोर्ट है। हैफा पोर्ट को कल रात ईरान ने मिसाइल से निशाना बनाया और 8 की वहाँ हलाकत हुई है, 10 बल्कि सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में पूरी तफसील थी जिसको मैंने बताया। उसके बाद बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इस एयरपोर्ट को भी ईरान ने कल निशाना बनाया और यहाँ भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। और दरअसल ईरान ने कल मशहद एयरपोर्ट पर एक जहाज़ पर हमला किया था, जिस जहाज़ में तेल भरने का प्रोसेस चल रहा था। तो ईरान ने फौरी तौर पर तुर्की बतुर्की जवाब दिया इजराइल को और बदला ले लिया बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ये एयरपोर्ट पूरी तरह इजराइल ने इन दिनों बंद कर रखा है। अपने तमाम जहाज़ों को भी इजराइल ने अपने दोस्त ममालिक के यहाँ भेज दिया है कि ईरान उस पर हमला ना कर सके। अपने पर्सनल जहाज़ को भी बिन्यामिन नेतन्याहू ने बाहर भेज दिया है। इसके बावजूद बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ईरान के मिसाइल ने हिट किया, टारगेट किया और ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो नहीं रोक सका। तिल अबीब का जो सेंट्रल सिटी का एरिया है उसको भी कल टारगेट किया गया। उसके अलावा शेल्टर हाउस, जहां ईरान का जब इजराइल पर हमला होता है और इजरायली शेल्टर हाउस में भागते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं, अपनी जान बचाते हैं,
تو शेल्टर हाउस को भी कल हम टारगेट किया गया, कह लीजिए टारगेट नहीं किया गया, बल्कि ईरान के मिसाइल हमले में इतनी शिद्दत थी, ईरान के मिसाइलों में इतनी पावर और ताकत है कि जो ज़ेर ज़मीन शेल्टर हाउस बने हुए हैं, जो बुंकर बने हुए हैं मिसाइल हमलों से बचने के लिए, वो शेल्टर हाउस भी कई सारे कल ज़मीन दोज़ हो गए, ढह गए और वो रहने के लायक नहीं बचे। इजरायली अवाम पहले से गुस्सा है अपनी सरकार से कि उन्हें छुपने की मुकम्मल जगह नहीं दी जा रही है। जो वीआईपीज़ है, जो मिनिस्टर्स की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सबको शेल्टर हाउस में बाज़ाब्ता रहने की जगह दी गई है और जो आम आवाम है उन्हें शेल्टर हाउस में जगह ज़्यादा नहीं मिल रही है। उसके बाद कल रात के हमले में यूएस एम्बेसी को भी नुकसान पहुंचा है। यूएस एम्बेसी जो इजराइल में मौजूद है उसको ईरान ने डायरेक्ट हिट किया या नहीं किया, अभी इस बारे में ईरान की तरफ से कोई भी एक्सप्लेनेशन या कोई भी वजाहत सामने नहीं आया है, लेकिन नुकसान ज़रूर पहुंचा है, ये जुज़वी नुकसान है और उसकी वीडियो सामने आई है। उसके अलावा हैफा में इजरायली आर्मी की फैक्ट्री है, जहां इजरायली आर्मी के जो ज़रूरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको तैयार किया जाता है। तो ईरान ने इस फैक्ट्री को भी निशाना बनाया और इसमें भी नुकसान हुआ है। तो ये कुछ बड़े हमले हैं 16 जून की रात के जो ईरान ने इजराइल पर किया, और इस हमले की डिटेल सामने आने के बाद पूरी दुनिया ने अब यही तज्ज़िया करना शुरू कर दिया है। और CNN की रिपोर्ट मैंने बताई कि इजराइल ने ईरान की जंगी ताकत के बारे में गलत तज्ज़िया किया, गलत अंदाज़ा लगाया। इजराइल को ये लग रहा था कि उसने इजरायली आर्मी के कमांड एंड कंट्रोल को तबाह बर्बाद कर दिया है, मिसाइल की फैक्ट्री पर हमला कर दिया है, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को ख़त्म कर दिया है। तो अब ईरान मुनज़्ज़म नहीं हो पाएगा। ईरान की आर्मी के तकरीबन 25 से ज़्यादा अहम कमांडरों को, रहनुमाओं को, चीफ को इजराइल ने शहीद कर दिया। तो अब दोबारा ईरानी आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी, वो इजराइल को जवाब नहीं दे सकती है। लेकिन 15 घंटे का सिर्फ ईरान ने टाइम लिया, 15 घंटे में सारी चीज़ों को मुनज़्ज़म किया। जो शहीद हुए थे उनकी जगह उनके जानशीन को मुकर्रर किया, उनकी जगह दूसरों को ज़िम्मेदार बनाया, और सिर्फ 15 घंटे 14 जून की सुबह सुबह ईरान ने मिसाइल लॉन्च करना इजराइल पर शुरू कर दिया और फिर इजराइल में तबाही और बर्बादी की शुरुआत हो गई। और इस तरह की तस्वीरें इजराइल से आने लगी जिसका किसी ने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था, और अब ईरान का हमला बढ़ता जा रहा है। उधर इजराइल अब लगातार अमेरिका से मदद मांग रहा है, खबरें भी सामने आ रही है। इजराइल अमेरिका से कह रहा है कि अब वो खुलकर मदद करे। अमेरिका अब भी इजराइल की मदद कर रहा है, लेकिन अमेरिका अभी तक इजराइल की जो मदद कर रहा है खुफिया तौर पर कर रहा है, खामोशी के साथ कर रहा है। अपने तमाम हथियारों को अमेरिका इजराइल को दे रहा है, और अब इजराइल अमेरिका से डायरेक्ट ओपन मदद तलब कर रहा है कि अमेरिका अपने तमाम हथियारों को अपने बहरी बेड़ा को भेजे, अमेरिका खुद भी ईरान पर हमला करे। इंग्लैंड ने अपनी मदद पहले ही भेज रखी है ईरान के हमलों को रोकने के लिए, अमेरिका का जहाज़ भी मौजूद है ईरान के मिसाइल को रोकने के लिए। इसके बावजूद ईरान का मिसाइल लगातार जारी है, और ईरान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में यह भी कहा कि अब तक ईरान ने अपनी फ़ौजी ताकत का इजराइल के ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल किया है, ईरान ने अब तक इजराइल पर जो हमला किया है वो उसकी मुकम्मल अस्करी ताकत नहीं है, बल्कि तो सिर्फ एक ट्रेलर है, एक झलक है। ईरान की असल फ़ौजी ताकत अभी बाकी है, और अगर ईरान ने अपनी इस ताकत का बाज़ाब्ता इजहार कर दिया, अपनी इस ताकत का इस्तेमाल किया, तो फिर इजराइल की ऐसी तबाही होगी जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।